السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک کال سے۔ قائد اعظم نے پاکستان کی فوج سے یہ کہا تھا کہ ڈو ناٹ فارگیٹ دیٹ آرم فورسز آر دا سرونٹس آف دا پیپل، یو ڈو ناٹ میک نیشنل پالیسی، اٹ از وی دا سویلینز who decide the issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are interested۔ ایم علی جناح، محمد علی جناح نے قائد اعظم نے یہ کہا تھا، اور یہ بات قائد اعظم نے آرم فورسز کو کہی تھی کہ یہ مت بھولو کہ فوج عوام کے خادم ہے، تم لوگ قومی پالیسی نہیں بناتے، یہ ہم سویلینز ہیں جو ایشوز کے مطابق پالیسیاں بناتے ہیں، اور یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ان پر عمل درآمد کرو، ہم اس سلسلے میں تم پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جو تمہیں کام دیا جائے اس کو پھر تم پورا کرو۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں۔ جو سوچ کر قائد اعظم نے پاکستان بنایا ویسا پاکستان ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں کہ ہمیں کیسا پاکستان بنانا چاہیے تھا۔ پاکستان بنانے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ آپ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، بناتے ہیں، کسی چیز کے لیے زور لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا۔ تو پاکستان بنانے کے پیچھے بھی تو ایک مقصد تھا۔ کیا بحیثیت قوم ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا؟ اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا تھا؟ خیبر پختونخوا نے یہ کیا کہ کوئی 17.5 لاکھ پودے لگا دیے یوم آزادی پہ۔ یہ ایک اچھی بات ہے، ہمیں بھی ایسا لگتا تھا اور ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے جو کرنا چاہیے۔ یوم آزادی پہ نہیں، ہر وقت کرنا چاہیے، ہر موقع پر یہ کرنا چاہیے۔ ہمیں بہت زیادہ درخت لگانا اور ان کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن 14 اگست کا دن ایکچولی کس لیے ہے؟ اس دن ہم نے ایک الگ ملک بنایا تھا، ایک خاص مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتایا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی بتایا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں گے، ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں ہمارے اوپر غلامی نہیں ہوگی، ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں پہ ہم خود مختار ہوں گے، ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں پہ ہماری مرضی چلے گی، حقیقی جمہوریت ہوگی، لوگ حقیقی طور پہ آزاد ہوں گے۔ لیکن کیا ہم نے اپنی منزل کی طرف وہ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا یا ہم کچھ آگے بڑھے بھی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اب ہر سال جب 14 اگست آتی ہے تو ہم باجے بجاتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کے اس میں شور مچاتے ہیں، ہم ریلیاں نکالتے ہیں، بہت اونچی آواز میں ڈیک لگا کے میوزک بجاتے ہیں، بہت سارے لوگ ناچ گانا کرتے ہیں۔ اب تو بڑا ولگر قسم کا ناچ گانا بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، یعنی ہم فائرنگ کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جشن آزادی پہ۔ اس کے لیے ہم ایک اور دن بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی ویسے ہی میرے خیال میں یہ دن اس کے لیے ہے نہیں۔ 14 اگست ایک سنجیدہ دن ہے۔ اس دن آپ نے زمین کا ایک بڑا ٹکڑا حاصل کیا تھا، ایک الگ ملک آپ نے حاصل کیا تھا پاکستان کے نام سے۔ اس ملک کو بنانے کے پیچھے بہت سارے مقاصد تھے۔ ہم نے یہ ملک کسی کے قبضے میں نہیں دینا تھا، یہ پاکستان کی عوام کا ملک تھا، یہ عوام کے کنٹرول میں رہنا تھا، یہ کسی ایک ٹولے کے، کسی ایک جتھے کے یا سرکاری ملازمین کے قبضے میں نہیں جانا تھا، ایک کمپنی کی طرح اس ملک کو نہیں چلانا تھا۔ اس ملک نے عوام کی امنگوں کے مطابق چلنا تھا۔ کیا وہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک میں غربت، بے روزگاری، مہنگائی یہ ختم ہو گئی ہے؟ کیا اس ملک کے اندر ناانصافی ختم ہو گئی ہے؟ انسانی حقوق کی پامالیاں بند ہو گئی ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہو گئی ہے؟ ہزاروں مسائل ہیں پاکستان کے اندر، لیکن جب بھی کبھی یوم آزادی آتا ہے تو ہم شور مچاتے ہیں صرف۔ اور یہ سلسلہ شروع کیا تھا ضیاء الحق نے۔ یاد رکھیے گا، ضیاء الحق کے دور سے پہلے کبھی بھی اس طرح باجے گاجے نہیں بجتے تھے۔ ضیاء الحق کے دور سے پہلے اس طرح کا شور شرابہ نہیں ہوتا تھا 14 اگست پہ۔ ضیاء الحق نے یہ شور شرابہ شروع کروایا اور اس کی سرکاری سرپرستی کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ سنجیدگی سے غور کریں کہ پاکستان کہاں پہنچ گیا، یا پاکستان بنانے کے جو مقاصد ہیں ان کے اوپر کوئی بات بھی کرے۔ آج بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ان کے ہواری جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ شور شرابہ چلتا رہے، رولا پڑا رہے، اور کوئی آدمی غور ہی نہ کرے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، جو اصل وجہ تھی اس کے اوپر کوئی بندہ سوچے ہی نہ کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی ساری قربانیاں کس لیے دی، وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کے اوپر کوئی سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم اتنا شور بجائیں گے، اتنے باجے بجائیں گے، اتنے موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکالیں گے، اتنا میوزک چلائیں گے اور اتنی آتش بازی اور فائرنگ کریں گے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اصل مقصد کیا تھا اور آج کے دن میں ہمیں کیا بات سوچنی ہے۔ یہ باجے کے لیے نا ایک الگ دن رکھنا چاہیے، ایک ایسا دن منتخب کیا جائے جب ساری قوم کو اجازت ہو، باجے بجائیں، ریلیاں نکالیں، شور مچائیں، ایک رولا ڈے پاکستان میں رکھ لیں گے۔ جتنا آپ نے انجوائے کرنا ہے آپ کریں، لیکن یہ دن خاص دن ہے۔
इस दिन कम से कम गौर करें कि आपके साथ हुआ क्या। कितना बड़ा मजाक आपके साथ किया गया कि जिन जिन मकासद के लिए आपने मुल्क बनाया था उन तमाम मकासद को पसे पुश्त डाल दिया गया और हम अपने मकसद से बहुत दूर निकल आए। ये तो नाज़रीन कायद-ए-आज़म का एक स्टेटमेंट था जिससे मैंने अपने वीलॉग का आगाज किया। आज मैं आपको एक बयान बताता हूं, ये बयान आप गौर से सुनिए। ये सरदार अमान खान ने स्टेटमेंट दिया आजाद कश्मीर में खड़े होकर। सामने खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, तलबा भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आजाद कश्मीर को इस्तेमाल किया बड़े लंबे अरसे तक। मकबूजा कश्मीर के नाम के ऊपर बहुत सारा फंड इकट्ठा किया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, बहुत बड़ी फौज तैयार की, लेकिन मकबूजा कश्मीर का 1 इंच भी आज तक फतह करके नहीं दिया। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी बोलना शुरू हो गए, वो बातें खोलना शुरू हो गए हैं जो बातें कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ भी किया वो अब सामने आ रहा है। और देखें, हमारा मकसद कुछ और था, हम निकल किसी और तरफ गए। कश्मीर जो हमारी शारक था, आज हमने उसको पीस के रख दिया। सरदार अमान खान ने क्या कहा, ये जरा आप अपने कानों से सुने कि उन्होंने कश्मीर में खड़े होकर क्या कहा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरने में। दहशतगर्दी में इंसानी हकूक की तंजीमों समेत, मैं आलमी तंजीमों समेत, मैं यूनाइटेड नेशन समेत, तमाम इंटरनेशनल मीडिया समेत, BBC समेत, अल जजीरा समेत जितने भी मीडिया हाउसेज है और जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सब को मैं ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में ISI में थी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज में थी। बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने, और बंदूक आपके जरिए सत्य में आई और आपने उस बंदूक के जरिए 1.5 लाख लोग शहीद करवाए। और आज आपका मसला है जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, हमारे साथ मुआहदे किए जाते हैं, वो तोड़ दिए जाते हैं। ये चीजें बहुत खतरनाक है। मैं पहले ही कह रहा था कि कश्मीर के मामलात में ये बहुत हसास मामला है। हर कश्मीरी के हाथ में बंदूक पकड़ाई गई है, लोगों ने बहुत तरबियत हासिल की है, लोग जंग लड़ते रहे हैं, मुजाहिद डिक्लेयर किया गया है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत जंग लड़ी उन्होंने, कारगिल का एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। ये सारी चीजें खुलना शुरू हो जाएंगी। जो हिंदुस्तान का बयानिया है वो आपके बयानिए के ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के जर्नैलों को अब किसी बात की फिक्र नहीं है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अपना जूता जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, और ये उसकी छांव में बड़े खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जूता है वो इनके सर पे हमेशा रहेगा, और वो जूते का आशीर्वाद लेके ये इंजॉय कर रहे हैं। इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि अमेरिका अपना काम निकालता है, उसके बाद वो जो जूता उसने आपके सर पे रखा होता है उसी जूते से मारता है, और ये उसने अपने बहुत सारे वफादारों के साथ किया। तो आपके साथ क्यों मुख्तलिफ होगा? सबके साथ वही कुछ हुआ जो आपके साथ होगा। तो नाज़रीन, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, तवज्जो किस तरफ है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। तवज्जो ये इस तरफ नहीं है कि कश्मीर को आजाद करवाना है, पाकिस्तान का पानी छुड़वाना है, नहीं। तवज्जो है कि PTI को कैसे तोड़ना है। अब ये तहरीक इंसाफ के अंदर एक फाउंडर्स ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया गया, खबरें भी चलवा दी गई। फाउंडर्स ग्रुप बना रहे हैं जनाब कि गैर नजरियाती जो तसल्लुत कायम हो गया है गैर नजरियाती लोगों का, उसको खत्म करने के लिए हम जिद्दोजहद करेंगे। फिर आते ही जो है तहरीक इंसाफ फाउंडर्स ग्रुप ने 9 मई की मजम्मत भी कर दी और यह भी कह दिया कि शोहदा हमारा फखर है, वो तो पूरे पाकिस्तान का फखर है। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हम फाउंडर्स ग्रुप हैं, यानी हम वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी। तो मैं जरा क्लैरिटी के लिए आपको बता दूं कि जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई तो बुनियादी तौर पर शुरू में कौन कौन से बंदे थे? नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 नईमुल हक, नंबर 3 एहसन रशीद मरहूम, नंबर 4 हफीज खान, नंबर 5 मवाहिद हुसैन शाह, नंबर 6 नौशेरवान बरकी और नंबर 7 महमूद ऐवान। ये 7 लोग थे जिन्होंने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। फिर आने वाले सालों में बहुत सारे लोग शामिल होते चले गए, कई लोग छोड़ गए, कई लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे। और ये बात डॉक्टर शीरी मजारी ने कैटेगोरिकली अपने एक स्टेटमेंट के अंदर लिख कर रख छोड़ी कि ये वो 7 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, और ये इमरान खान साहब ने इंफॉर्मेशन दी थी। नाज़रीन, 4 वफाकी वुज़रा को निशाने इम्तियाज देने का फैसला किया गया है, और ताहिर अशरफी को, तो ताहिर अशरफी का तो बनता है ना। ताहिर अशरफी ने जितनी खिदमात सर अंजाम दे दी हैं, जितनी मौलाना ताहिर अशरफी ने गालियां खा ली पाकिस्तानियों से, चलो एक आधा निशाने इम्तियाज या कोई ना कोई तमगा तो दे देना चाहिए बेचारे को। लेकिन आप बाकी लोगों को किस चक्कर में तमगा दे रहे हैं? ताहिर अशरफी का तो चलो बनता है ना कि बहुत बेचारे ने कुर्बानी दी है, बहुत ज्यादा। यानी जितना ताहिर अशरफी साहब ने पॉलिश की है और जितना ताहिर अशरफी साहब ने गेम चुक के रखी है ना,
उतनी तो किसी ने नहीं भी की। तो बाकी एक तो मोहसिन नकवी को दे रहे हैं। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले तक मोहसिन नकवी के बारे में वफाकी वज़रा ये कह रहे थे कि इसकी कारकर्दगी बहुत खराब है। इसके बारे में बता रहे थे कि वजारत दाखिला में इसने बहुत गंद मारा हुआ और मोहसिन नकवी ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, किसी एक नुक्ते के ऊपर भी ये अमल दरामद नहीं करवा पाया, ये वजीर दिफा कह रहा था। लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज मिल रहा है। क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, निशान इम्तियाज मिल रहा है। वजीर दाखिला, पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है तूलो अर्ज के अंदर। एक SHO की मारते दहशतगर्द। आज बलूचिस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ है कई इलाकों में, लेकिन ये वजीर दाखिला और इसको निशान इम्तियाज देने का फैसला किया जा रहा है। बात सिर्फ वही है, जो फील्ड मार्शल की खिदमत करेगा उसको निशान इम्तियाज भी मिलेगा और सारा कुछ मिलेगा। हो सकता है उसको उठा के कल को निशान हैदर भी दे दें। तो इसहाक डार जिसका किया कराया कौम आज तक भुगत रही है। इसहाक डार जिसने गलत अदादो शुमार दिए, पाकिस्तान को जुर्माना भी करवा दिया। इसहाक डार जिसने मईशत को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था। इसहाक डार जिसके बारे में जनरल बाजवा सहाफियों को कहता था कि इस आदमी ने वो गड़े खोदे हैं कि पाकिस्तान 3 साल तक अपनी कमर सीधी नहीं कर सकता। आज उस इसहाक डार को जिसने पाकिस्तान की मईशत की तबाही में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, उसे अब दिया जा रहा है निशान इम्तियाज। मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना है। देखें इसका काम क्या है। इसका काम यह है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना। मईशत का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई। गुर्बत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, हर चीज में सब कुछ खराब करने वाले आदमी को, मोहम्मद औरंगजेब को, इसको भी निशान इम्तियाज। चौथा अहद चीमा है। शहबाज शरीफ कहते रहे जलसों में मेरा छोटा भाई है। ये करप्शन में गिरफ्तार भी हो चुका माजी में, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त ISI ने इसको उठा के अहद चीमा को अंदर डाल दिया हो। इसने वैसी करप्शन ना की हो जैसी ISI ने इस पर डाल दूंगा। जब भी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई हो जाती है ना ISI की, तो वो उनके बंदे उठा उठा के जेलों में डालना शुरू कर देते हैं। तो शहबाज शरीफ ने पब्लिकली कहा हुआ था कि अहद चीमा मेरा छोटा भाई है। तो उस दौर में इसकी जेल बनती थी और इस दौर में इसका तमगा बनता है। तो इसको भी जनाब एक तमगा इम्तियाज जो है, निशान इम्तियाज से नवाजा जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं, साफियों को मिल रहे हैं। इसमें साले जाफर एक बहुत बड़ा नाम है। साले जाफर की बहुत सारी खबरें बड़ी मशहूर हुई, बड़ी कमाल। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जिसके साथ ताल्लुक ठीक हो वहां ये गेम चुक के रखते हैं। साले जाफर की ये खूबी है। जब नवाज शरीफ वगैरह बेचारे पकड़े गए थे ना, तो उनके कमरों से जिनसी अद्वियात और गंदी फिल्में और पता नहीं क्या कुछ साले जाफर ने निकाल लिया और उसकी एक खबर भी बना के चला दी। जंग अखबार के अंदर आज तक छपी हुई है, सामने मेरे पड़ी हुई है। ये देखें, ये खबर है। नवाज शरीफ अटक जेल मुंतकिल, प्राइम मिनिस्टर हाउस से वीडियो फिल्में और जिनसी अशिया बरामद हो गई हैं और जनाब अटक किले में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनसे बाद मामलात के बारे में पूछताछ किए जाने का इम्कान है। जंग को पता चला है कि वजीर आजम से अहम मामलात के बारे में जो है वो बातचीत होगी और साथ उन्होंने ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इंक्लूजर मखसूस था जिसके एक हिस्से को नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर भी इस्तेमाल करते थे। शहबाज शरीफ की ख्वाबगाह से जिनसी मकासद के लिए इस्तेमाल में आने वाली अद्वियात मिली थी। पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, बकवास। लेकिन यहाँ ये बंदा जो है ना, इसने ये खबर भी दी हुई थी एक और, इसी ने साले जाफर ने खबर दी जी कि नून लीग ने 7 ट्रक भर के जो असला है वो फौज के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रोवाइड किया, अपने कारकुनों को 7 ट्रक भर के असला प्रोवाइड किया नून लीग ने अपने कारकुनों को और उनकी ट्रेनिंग करवाई कबायली इलाकों से और वो फौज को मारेंगे। ये खबर भी साले जाफर ने दी हुई थी। फिर मरियम नवाज के पीले रंग की कपड़ों की खबर भी साले जाफर ने दी थी। एक दफा नवाज शरीफ जो है वो उधर किसी मुल्क में गए सेंट्रल एशिया में, तो वहां साले जाफर ने खबर दी कि उस दिन हल्की हल्की बारिश हुई, तो वहां पे उन्होंने कहा कि आपके वजीर आजम तो रहमत हैं, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। हालांकि उधर होती रहती है हल्की हल्की बारिश, तो वहां मौसम अच्छा है, उन मुल्कों का ठंडे मुल्क है, वहां पे चलता रहता है, लेकिन वहां जाके भी गेम चुक दी थी। तो जब भी कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी के भी साथ होती है ना, ये उसके साथ मिल जाते हैं। तो साले जाफर का बनता है जनाब, उनको भी अब दिया जा रहा है निशान इम्तियाज। और भी बहुत सारे सहाफियां ऐसे ही मिलते जुलते ही हैं, इसी तरह के करैक्टरों को नवाजे। इन निशानों को बेड़ा गर्क कर दिया। कल को किसी इज्जतदार आदमी को कहेंगे ना आप ये निशान इम्तियाज ले लें, वो हाथ जोड़ के कहेगा यार बड़ी मेहरबानी है आपकी, जिनको आपने बांट दिया हुआ ना काफी है। यानी इस दौर में जितनी बेतौकीरी की गई है कौमी अवार्ड्स की, एक इनका रुतबा होता था कि ये निशान इम्तियाज है, ये जनाब इसको फलाना अवार्ड मिला हुआ है, इसको तमगा उसने कारकर्दगी मिला हुआ है। बड़ा लोग फख्र करते थे, अपने दरवाजे के ऊपर नेम प्लेट के ऊपर लगा कर रखते थे और हम उन लोगों को बड़े फख्र से देखते थे। हम हैरान होकर देखते थे कि यार देखो उन्होंने कितनी खिदमत सर अंजाम दी है,
किसी इलाके में अगर कोई एक आदमी होता था इस तरह का तो उसको बड़ा ऑनर मिलता था पूरे इलाके के अंदर, कि इन अवार्ड्स की बड़ी वुक्कत होती थी। अब इनकी बेतौकीरी हो गई है। अब तो ये पता नहीं किसी को भी देंगे, शायद मुस्तकबिल में कोई लोग इनकार ही कर दें कि भाई हम तो ये नहीं लेते, आपने इनको इतना बेतौकीर कर दिया है। और बेतौकीर तो हर चीज़ को किया है, सबसे ज़्यादा तो आवाम को ही बेतौकीर कर दिया। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे ये कैसर अहमद शेख साहब हैं, नून लीग के MNA, इन्होंने 5 लीटर पेट्रोल जो है वो मुफ्त देने का फैसला किया। ये कोई 1500-1600 रुपये का बनता है पेट्रोल। ये 5 लीटर पेट्रोल इन्होंने कहा मैं मुफ्त में दूंगा जश्न आज़ादी के दिन। हज़ारों लोग लाइनों में लगे हुए थे, लोग रात के वक्त आके कतारों में खड़े हो गए थे। सुबह जब मुफ्त में पेट्रोल मिलेगा तो हम पेट्रोल लेकर जाएंगे। ये कौम की हालत कर दी इन्होंने 5 लीटर पेट्रोल के लिए। यहां पे आप बरतानिया में ऐलान करें ना कि 5 लीटर क्या आप करें 20 लीटर पेट्रोल मिल रहा है आपको, सुबह 4 बंदे मुश्किल से मिलेंगे जो लाइन में लगे हुए होंगे। यानी इधर वो नहीं, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कौम की इतनी बेतौकीरी की है, इतनी गुर्बत फैला दी, इतना बेड़ा गर्क किया कौम का। और हालात क्या कर दिए ये आप देखें ना, पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्जा कितना है। ये शहबाज राणा साहब का क्रेडिट है क्योंकि ये डाटा उन्होंने निकाला, सरकारी डाटा है, कोई भी निकाल सकता है, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये खबर दी थी। टोटल जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, वो 100 ट्रिलियन का कर्जा है, जो पहली दफा तारीख में हुआ। 100 ट्रिलियन का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया। आप अंदाजा करें 100 ट्रिलियन का। आपको पता है पाकिस्तान की फौज का बजट कितना है? 3 ट्रिलियन। यानी फौज का 33 साल का जो बजट है ना, 33 साल तक फौज जितना पैसा खर्च करती है उतना पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ गया। 3 ट्रिलियन का पाकिस्तान की फौज का बजट है, और सबसे बड़ा बजट पाकिस्तान में फौज का ही है। फौज ही एक ऐसा इदारा है जिसका बजट सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, बाकी सारे इदारों का बजट